کہ آپ دیکھ رہے ہیں حفاظ کرام، علماء کرام، ائمہ مساجد، صحابات اور اس کے قرب و جوار کے اکثر کے چہرے میں پہچان رہا ہوں اور وہ مجھے پہچان رہے ہیں۔ میں سب کی دعائیں لے کر کے کچھ آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں جب سے یہاں بیٹھا ہوں، کافی وقت سے بیٹھا ہوں میں منبر نور پہ، میں یہ جو سامنے جو تھوڑے سے بچے بیٹھے ہیں نا، وہ افراتفری کا ماحول بنائے ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو دو لوگوں کی طرف میں بالکل توجہ نہیں کرتا، ایک یہ جماعت ہے آپ جن کو دیکھ رہے ہیں، اور دوسری یہ ہے کیونکہ جو سننے کا ذہن لے کر کے آتے ہیں تھوڑا پیچھے جا کر کے بیٹھے ہیں، اور یہ 50-50 گرام کی بٹیاں آگے بڑھا دی جو آگے جلسے میں افراتفری کا ماحول پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اتنی جگہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پھر بھی موبائل جیب سے نکال کر کے پھر بھی اس کو لوڈ کرنا، یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ بس تھوڑی سی توجہ دیں، ایک شعر پہ پوری تقریر کروں گا کہ بخشش کی راہ مومنوں آسان بنا لو، بخشش کی راہ مومنوں آسان بنا لو، اپنے لیے نجات کا سامان بنا لو، اور دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا، دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا، بچوں کو پہلے حافظ قرآن بناؤ، دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا، بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو، اور جو بھی رسول پاک پہ قربان ہو گیا مرنے کے بعد خلد کا مہمان ہو گیا، اللہ کی رحمت نے اسے گود میں لیا جس کا بھی بچہ حافظ قرآن ہو گیا، اللہ کی رحمت نے اسے گود میں لیا۔ آپ حضرات کی محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اب خاموشی بالکل نہیں چلے گی، ایک بھی مجمع میں خاموش نہیں رہے گا کہ جو بھی رسول پاک پہ قربان ہو گیا مرنے کے بعد خلد کا مہمان ہو گیا، اللہ کی رحمت نے اسے گود میں لیا، ارے جس کا بھی بچہ حافظ قرآن ہو گیا، اللہ کی رحمت نے اسے گود میں لیا، جس کا بھی بچہ حافظ قرآن ہو گیا۔ یہ حفاظ کرام ہیں، علماء کرام ہیں۔ ابھی مفتی وسیم صاحب قبلہ سے آپ نے بہترین خطاب علم دین کی فضیلت پہ سماعت کیا ہے، ان کے خطاب ہی سے میں ایک راستہ چن کر کے آپ تمامی حضرات کے سامنے کچھ لب گشائی کر رہا ہوں۔ کوئی تمہیدی کلمات نہیں، کوئی آپ کا وقت ایک منٹ کا بھی میں ضائع نہیں کروں گا۔ حضرت نے علم دین پہ تقریر کی ہے، اب اسی علم کے تعلق سے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں من اراد العلم فعلیہ بالقرآن، جو علم حاصل کرنے کا ارادہ کرے، جو تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ کرے، جو ایجوکیشن حاصل کرنے کا ارادہ کرے، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں فعلیہ بالقرآن، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے، کیونکہ قرآن جس کے سینے میں ہوتا ہے وہ اپنے باپ کا بھی ادب کرتا ہے، قرآن جس کے سینے میں ہوتا ہے وہ اپنی ماں کا بھی مرتبہ جانتا ہے، قرآن جس کے سینے میں ہوتا ہے وہ اپنے بڑے بھائی کا بھی ادب کرتا ہے، قرآن جس کے سینے میں ہوتا ہے وہ پڑوسیوں کے حقوق جانتا ہے، قرآن جس کے سینے میں ہوتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق جانتا ہے، قرآن جس کے سینے میں ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کے حقوق بھی پہچانتا ہے۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، یہ تو آج ہم نے اپنی سوچ بنا رکھی ہے، یہ تو آج ہم نے اپنا ذہن بنا رکھا ہے کہ جب ہمارے بچے بولنے کے لائق ہوئے، جب ہمارے بچے چلنے کے لائق ہوئے، ہم نے سوچا کہ اسے ڈاکٹر بنائیں گے، کوئی کہتا ہے اسے انجینئر بنائیں گے، کوئی کہتا ہے اسے پروفیسر بنائیں گے۔ ہم نے مدرسے کا رخ نہیں کرایا، دینی تعلیم کی طرف ہم نے رخ نہیں کرایا۔ حضرات جب بچہ قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوگا، جب بچہ علم دین حاصل کیے ہوئے نہیں ہوگا، تو یونیورسٹی میں ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، کالجوں کے اندر ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں وہ کالج جہاں پر انگلش میڈیم کو فروغ دیا جاتا ہے، جہاں عیسیٰ گوڈ پڑھایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا
का बेटा बताया जाता है। हमारा कुरान क्या कहता है? हमारा कुरान कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर और उसके बंदे हैं। हज़रात ये पैगाम वो बच्चा जानेगा ना जो कुरान पढ़े हुए होगा, जो कुरान की तालीम से आरास्ता होगा। आज अपने ज़हन को मेरी तरफ मुतवज्जह कीजिए, तुम क्या समझते हो कुरान की तालीम से हट करके तुम कामयाब हो जाओगे? कुरान हासिल न करने के बाद तुम कामयाब हो जाओगे? इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, जब दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, जब दुनिया में कोई कॉलेज नहीं था, जब दुनिया के अंदर कोई स्कूल नहीं था, हज़रात अब से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सबसे पहली यूनिवर्सिटी कब बनी है? सबसे पहला कॉलेज कब बना है? सबसे पहला स्कूल कब बना है? आप बताओ मुझे प्यारे मुसलमानों, सबसे पहली यूनिवर्सिटी कितने साल की होगी? ये यूनिवर्सिटी की उम्र कितनी है? 400 साल है, 500 साल से ज्यादा इस यूनिवर्सिटियों की उम्र नहीं है। जब 500 साल से पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, 500 साल से पहले जब कोई कॉलेज नहीं है, तो कोई इंजीनियर भी नहीं होगा, कोई आर्किटेक्ट भी नहीं होगा, कोई इंजीनियर नहीं होगा। तो अब आप मुझे बताओ, जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, सबसे पहली जामिया अजहर है, यूनिवर्सिटी तो अब बनी है, ये उलमा बताएंगे वो भी पहले मदरसा था। हज़रात तो अब अपने ज़हन को करीब करिएगा। मैं एक अलग से आपके ज़हन में एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे कुरान की शान क्या है। आज हम कुरान छोड़ के दुनियावी तालीम की तरफ जा रहे हैं। मैं दुनियावी तालीम का मुनकिर नहीं हूँ, आज के दौर में जरूरत है उस तालीम की भी, लेकिन पहले बेसिक तालीम दिलाइए, पहले अपने मजहब की तालीम दिलाइए, पहले अपनी शरीयत की तालीम दिलाइए, पहले अपने मजहब की तालीम कुरान अपने बच्चे को सिखाइए। इसलिए कि मेरे प्यारे मुसलमानों, 400-500 साल पहले जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तो कोई आर्किटेक्ट भी नहीं होगा, कोई इंजीनियर भी नहीं होगा। तो अब आप मुझे बताओ, ये ताजमहल बनाने वाला कौन है? कुतुब मीनार बनाने वाला कौन है? ये दिल्ली की जामा मस्जिद बनाने वाला कौन है? अरे ये कुतुब मीनार बनाने वाला कौन है? तो तुम्हें भी ये कहना पड़ेगा, उस वक्त जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो ताजमहल बन रहा था, कुतुब मीनार बन रहा था, दिल्ली की जामा मस्जिद तामीर हो रही थी, आगरे का ताजमहल बन रहा था। ये किसी और की देन नहीं है, बल्कि कुरान पढ़ने वाले की देन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। की देन है। ये कुरान क्या है? हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। लेकिन शर्त यह है इतना इल्म होना चाहिए, शर्त यह है इतनी सलाहियत होनी चाहिए, शर्त यह है इतनी काबिलियत होनी चाहिए। आज हम कुरान से दूर होते जा रहे हैं। आओ कुरान की शान देखो। इमाम गजाली का नाम आपने सुना होगा, ये वो हजरत इमाम गजाली है, हुज्जतुल इस्लाम जिनका लक़ब है। इनसे एक गैर मुस्लिम ने पूछा था, हे इमाम गजाली, जरा ये तो बताइए, मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने कुरान के अंदर पढ़ा है कि सितारों की चाल का जिक्र है, और सितारे जो चलते हैं वो दो अंदाज में चलते हैं, एक मुस्बत अंदाज में चलते हैं, दूसरा मनफी अंदाज में चलते हैं, एक सीधी चाल चलते हैं, दूसरा उल्टी चाल चलते हैं। तो ये जो सितारे आप आसमान में देखते हो, ये सितारों के चलने का जिक्र कुरान के अंदर आया है। तो इमाम गजाली से पूछ रहा है, और पूछ रहा है, जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, अरे दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़हन मेरी तरफ कीजिए, तवज्जो मेरी तरफ दीजिए। एक जुमला भी मिस हो गया तो पूरी तकरीर का मफहूम आपके ज़हन से निकल जाएगा। हज़रत अल्लामा मुफ्ती बिलाल साहिब किबला की आमद हो चुकी है, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, बड़ी शफ़क़तें हैं इनकी। आप देखिए, तवज्जो दे मेरी तरफ। कुरान है क्या? इमाम गजाली से गैर मुस्लिम पूछ रहा है, मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम। कहता है, ये इमाम गजाली, जरा आप ये तो बताइए, हमने कुरान को पढ़ा है और सितारों की चाल का जिक्र हमने उसमें पढ़ा है। इमाम गजाली हैरत से देखने लगे, ये मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, और ये कुरान पढ़ने की बात कर रहा है। यहाँ रोक करके आपको एक बात बताऊं, यही मुरादाबाद की सरजमीन है। यहाँ पर एक अल्लाह का नेक बंदा आराम फरमा रहा है, जिसे दुनिया वाले
सदरुल अफाजिल अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी के नाम से जानते हैं। उन्होंने कुरान पाक की तफसीर खज़ाइनुल इरफान लिखी है। आओ जरा उस शख्सियत को आप देखें। उनका मुनाजरा एक आरिया से हुआ था। वो आरिया कहता है, ए अल्लामा, आप हमसे मुनाजरा करने आए हो, हमें तुम्हारे कुरान के 14 से 12 सवाल याद है, क्या तुम्हें हमारी किताब का भी कोई वर्ग याद है? क्या तुम्हें हमारी किताब का भी कोई पाठ याद है? इमाम गजाली की शान तो अभी आपको मैं बताता हूँ। पहले अल्लामा सदरुल अफाजिल की शान देखिए। अल्लामा सदरुल अफाजिल इरशाद फरमाते हैं, अब भी तेरी समझ में नहीं आई? आरिया कहता है, नहीं समझा। फरमाया, यही तो मेरे मजहब की सच्चाई है, यही तो मेरे कुरान की सच्चाई है, अरे यही तो मेरे कुरान की शान है। अरे जो अपने तो अपने रहे, गैरों के भी दिल में जगह बना लेती है। तेरे कौल के मुताबिक तेरी किताब को आए हुए कई सौ साल गुजर गए हैं, तेरी किताब हिंदुस्तान के बाहर न जा सकी। आप गीता को देखो, हिंदुस्तान के बाहर न जा सकी। आप देखो 14 वेदांत है और 28 पुराण है, लेकिन आप उनको देखिएगा, वो आज भी दे दे करके आपको संस्कृत में ही मिलेंगे। हमारे कुरान की शान तो आप देखिए, वो किताबें हिंदुस्तान के बाहर न जा सकी। मैं किसी किताब की कोई तौहीन की बात नहीं करता, मैं अपने कुरान की अजमत बता रहा हूँ। वो किताबें आज तक हिंदुस्तान के बाहर न जा सकी। और कुरान नाज़िल हुआ है मक्के में, कुरान नाज़िल हुआ है मदीने में, कुरान नाज़िल हुआ है मैदान बद्र में, कुरान नाज़िल हुआ है मैदान उहुद में। और कुरान की शान देखो, कुरान मक्के से चला, पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया। कुरान मदीने से चला, पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया। ये कुरान पूरी दुनिया में चला कैसे है? उस वक्त इंटरनेट का जमाना नहीं था, उस वक्त मीडिया का जमाना नहीं था, उस वक्त सैटेलाइट का जमाना नहीं था, उस वक्त अखबार का जमाना नहीं था। फिर ये कुरान पूरी दुनिया में कैसे पहुंच गया? तो ये हुफ़ाज़े किराम को अपनी निगाहों के सामने रखिए, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये हुफ़ाज़े किराम वो है जो कुरान को अपने सीने में महफूज किए हुए हैं। इमाम गजाली की शान सुनने वालों, अल्लामा सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं, अब भी तेरी समझ में नहीं आई? अरे तेरे कौल के मुताबिक तेरी किताब को आए हुए कई सौ साल गुजर गए, लेकिन वो आज तक हिंदुस्तान के बाहर न जा सकी। और हमारे कुरान की शान ये है कि पूरी दुनिया में कुरान पहुंच गया है। कुरान नाज़िल हुआ मक्के में, कुरान नाज़िल हुआ मदीने में। मैंने कुरान से पूछा, ये कुरान जरा ये तो बता, जब तू नाज़िल हुआ था तो इंटरनेट का जमाना नहीं था, मीडिया का जमाना नहीं था, सैटेलाइट का जमाना नहीं था, अखबार का जमाना नहीं था, फिर तू पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? जबकि चलता वो है जिसके पास पैर हो, पकड़ता वो है जिसके पास हाथ हो, बोलता वो है जिसके पास जुबान हो। ये कुरान पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? तो कुरान जवाब देता है, अगर इंटरनेट के जरिए चला होता, अमेरिका के ईसाइयों ने पीछा किया होता, अगर .com के जरिए चला होता, रूस के मजूसी ने ताक़ुब किया होता, अगर अखबार के जरिए फैला होता, तो भारत के पत्रकार ने कुछ ना कुछ लिख दिया होता। मैंने कहा फिर फैला कैसे है? तो कुरान जवाब देता है, अखबार के जरिए नहीं, हाफिज़ कुरान के जरिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, मज़हबे इस्लाम, पैगम्बरे इस्लाम हज़रत अल्लामा फरमान मंज़री साहिब क़िबला। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाग में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़ कुरान बना लो, बच्चों को पहले हाफिज़ कुरान बना लो। तो इमाम गजाली से गैर मुस्लिम पूछ रहा है कि हुजूर जरा ये बताइए, समझ में आ रही बात आपकी? तो जरा मोहब्बत से हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी मोहब्बत का इजहार करें। मैं कुरान की शान बता रहा हूँ। 6 बच्चे मदरसे से फारिग हुए हैं। ये कारी साहब की मोहब्बतें, मेरे साथी, मेरे हम सबक हम दर्स साथी मुफ्ती निजामुद्दीन साहिब क़िबला की मेहनत और काबिश का समरा है। आप देखें जो 6 हाफिज़े कुरान हैं, दुआ करें आने वाले वक्त में अल्लाह ताला इस मदरसे से 12 हुफ़ाज़े किराम अता फरमाए। हज़रात ये सिलसिला बढ़ता रहे। आप देखो
इमाम गजाली हैरत से देख रहे हैं, बोले क्या बात है? कहता है जरा ये बताइए कि कुरान में सितारों की चाल का जिक्र है, और जो सितारे चलते हैं वो दो तरह से चलते हैं, एक पॉजिटिव अंदाज में चलते हैं, दूसरे नेगेटिव अंदाज में चलते हैं, एक सीधी चाल चलते हैं, दूसरा उल्टी चाल चलते हैं। तो सीधी चाल का जिक्र मुझे कुरान में मिल गया। इमाम गजाली फरमाते कौन सी आयत में तुझे मिल गया? तो वो कहता है मैं सूरह यासीन शरीफ पढ़ रहा था। कौन? मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम कह रहा है। मैं सूरह यासीन शरीफ पढ़ रहा था, मैंने उसमें पढ़ा था कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर चीज आसमान में तैर रही है, हर चीज आसमान में चल रही है। तो सितारों की चाल का भी जिक्र था, तो सीधी चाल का जिक्र मुझे मिल गया, लेकिन उल्टी चाल का जिक्र मुझे नहीं मिला। इमाम गजाली मुस्कुरा के फरमाते हैं। अब यहाँ पहुंच के एक बात मैं आपसे पूछूं, आज हम कुरान पढ़ते हैं, किसी का इंतकाल हो जाए तो कुरान पढ़ते हैं, किसी के यहाँ कुरान खाली हो तो वहाँ जाकर के कुरान शरीफ की हम तिलावत करते हैं। हम कुरान कब पढ़ते हैं? कोई दुकान रख रहा है तो उस दुकान में जाकर के बरकत के तौर पे बैठ करके हम कुरान की तिलावत करते हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हम कुरान को पढ़ा और पढ़ करके ऊपर रख दिया, और आज तो कुरान जिस हाथ में होना चाहिए था उस हाथ में मोबाइल आ गया है। आज कुरान को इतने ऊपर ताक में रख दिया है जहाँ पर हाथ नहीं पहुँचता, और मोबाइल आज हर हाथ में आ गया है। आज ये मेरी कौम 2.5 घंटे की फिल्में बैठ के देख लेती है, लेकिन 10 मिनट कुरान की तिलावत बैठ के नहीं कर सकती। आज वो कौम तो रोना रोती है कि हमारे ऊपर मुसीबत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, आज हम हर तरफ से सताए जा रहे हैं। याद रखो वो मुअस्सस के जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअस्सस के जमाने में मुसलमान होकर और ख्वार हुए तारीख कुरान होकर घर से कुरान अगर तुमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने में दिखाया होगा। हमें करती है शहंशाह कहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार हमें। आज हमने कुरान की तिलावत को छोड़ दिया है, आज हम कुरान की तिलावत नहीं करते। आओ जरा देखो कुरान की शान क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुरान को अल्लाह की अजीम किताब है। हजरात इस कुरान से रिश्ता मजबूत कर लो, इस कुरान का दामन मजबूती से पकड़ लो, इस कुरान के दामन को मजबूती से थाम लो। कुरान को अगर से मुश्तक माने तो इसके माना आते हैं ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, जिसकी तिलावत कभी खत्म न हो। तो ये कुरान है। दुनिया में कोई किताब इतनी नहीं पढ़ी जाती है जितना कुरान पढ़ा जाता है। हर वक्त कुरान की तिलावत होती है, 5 वक्त की नमाज में कुरान पढ़ा जाता है, इंतकाल हो जाए तो कुरान पढ़ा जाता है, मीलाद शरीफ हो तो शुरू में कुरान पढ़ा जाता है, इख्तिताम में कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, बच्चा पैदा हो तो कुरान खानी होती है तो कुरान पढ़ा जाता है, इंतकाल हो जाए तो कुरान पढ़ा जाता है। जितना कुरान पढ़ा जाता है कोई किताब दुनिया में इतनी नहीं पढ़ी जाती है। आओ देखो कुरान से मुस्तक माने तो कुरान के माना आते हैं ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, जिसकी तिलावत कभी खत्म न हो। और कुरान को करन से मुस्तक माने तो इसके माना आते हैं मिलाने वाली, इसके माना आते हैं जमा करने वाली। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं ऐ लोगों कुरान के दामन को मजबूती से पकड़ लो, क्योंकि ये कुरान पढ़ने वाले को परवरदिगार से मिला देता है, कुरान अपने मौला से मिला देता है। इसलिए मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ने लगता हूं, और जब मेरा दिल चाहता है मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह अकबर। ये कुरान है। आज हम कुरान की तिलावत नहीं करते। एक शायर ने कहा था हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने के लिए कुरान नहीं है, कुरान को हर लफ्ज को अपने सीने में बसाओ। मेरे प्यारे मुसलमानों, कुरान को समझ के पढ़ना चाहिए। अफला यतदब्बरून कुरान, क्या कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? क्या कुरान में गौर व फिक्र
नहीं करते। अरे गैर मुस्लिमों ने गौर और फिक्र करके इससे वो रमूज और असरार को तलाश कर लिया, हीरे जवाहिरात को तलाश कर लिया। और एक मेरी कौम के मुस्लिम हैं कि कुरान पढ़ेंगे तो रस्मी तौर पे पढ़ा और उठा के ताक में रख दिया। आओ जरा देखो कुरान की शान, कुरान की अजमत को जरा देखिए, कुरान का मकाम और मर्तबा को आप जरा देखिए। बड़े करीब से कुरान की अजमत दिखा के बैठ जाऊंगा। हजरात ये कुरान क्या है? इमाम गजाली से गैर मुस्लिम पूछ रहा है। आज हम कुरान को रस्मी तौर पे पढ़ रहे हैं और कुछ सुधारों की चाल का जिक्र पूछ रहा है कि कुरान के अंदर आया है हर चीज आसमान में तैर रही है। आप बताओ, सीधी चाल का जिक्र मुझे मिल गया, अब उल्टी चाल का जिक्र आप बताइए। अब ये उलमा अपनी दुआओं से मुझे नवाजेंगे। ये हुफ़ाज़ किराम की दुआएं लेकर के इमाम गजाली मुस्कुरा के फरमाते हैं तुझे सीधी चाल का जिक्र मिल गया। बोला हाँ। फरमाया कौन सी आयत में? कहता है कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, सूरह यासीन शरीफ में है, हर चीज आसमान में तैर रही है। इमाम गजाली मुस्कुरा के फरमाते हैं थोड़ा और गौर कर लेता तो उल्टी चाल का भी जिक्र तुझे मिल जाता। थोड़ा और गौर कर लेता। कहता है आप बताइए मेरी तो समझ खत्म। तो आपने मुस्कुरा के फरमाया देख कुल्लुन फी फलक। अब एक थोड़ी इल्मी बात है, इनकी दुआएं लेकर के थोड़ा इनकी तरफ मुतवज्जो होकर समझाऊंगा आपको भी। कुल्लुन फी फलक, कुल्लुन में पहला हर्फ काफ, दूसरा हर्फ लाम, मिला के क्या हुआ कुल। फलक में पहला हर्फ फा, दूसरा हर्फ लाम, तीसरा हर्फ काफ, मिला के क्या हुआ फलक। अब फी में पहला हर्फ फा, दूसरा हर्फ या, मिला के हुआ फी। कुल्लुन फी फलक, ठीक है। अब इसको उल्टा करके देखिए आप, कुल्लुन फी फलक, कुल फी फलक। अब उल्टा देखें, अब फलक में पहला हर्फ क्या है? काफ, दूसरा हर्फ क्या है? लाम, मिला के क्या हुआ? कुल। अब फलक का फा बचा, इधर फी का या बचा, मिला के क्या हुआ? फी, कुल्लुन फी। अब इधर फी का फा, इधर कुल का लाम, और आखिरी हर्फ है का। अब फी का फा, लाम, काफ, मिला के क्या हुआ? फलक। इमाम गजाली फरमाते हैं कि अगर सीधी तरफ से पढ़ेगा तब भी कुल्लुन फी फलक है, और उल्टी तरफ से पढ़ेगा तब भी कुल्लुन फी फलक है। अगर सीधी तरफ से पढ़ोगे तो सीधी चाल मुराद है, और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तो उल्टी चाल। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा फरमान मंजरी साहिब किबला। ये कुरान है, हर चीज कुरान में है। तुम कुरान छोड़ के कहाँ जा रहे हो? कुरान को अपने दामन में लाओ तो सही, कुरान का दामन पकड़ो तो सही, कुरान की तिलावत करो तो सही, कुरान के दामन को मजबूती से पकड़ो तो सही। दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे, कब्र में भी आराम से रहोगे। आप देखो हमारे बुजुर्गों ने कहा है जो बाअमल हाफिज़े कुरान है उसके जिस्म को कब्र में मिट्टी नहीं खाएगी, और जो बाअमल आलिम दीन है उसके जिस्म को भी कब्र में मिट्टी नहीं खाएगी, और जो हर वक्त नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है उसके जिस्म को भी कब्र में मिट्टी नहीं खाएगी। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कसम मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह। कुरान हर चीज का बयान कुरान के अंदर। अब एक बात मैं आपको बताऊं, जो दावा किया ना हर चीज का बयान कुरान के अंदर, अब आओ देखो 1969 के अंदर, 1969 के अंदर कुछ लोग चांद पर गए थे। कितने लोग गए थे? 3 लोगों का जिक्र आया है, नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग और माइकल कॉलिन। ये 3 लोगों का नाम आया जो चांद पर गए थे। कब गए? 1969 में। अब मुझे बताओ बेटा, खामोश हो जाओ तुम लोग, जलसा खराब मत करो, बड़ी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं और दरवाजे दरवाजे भीख की तरह मांगते हैं जलसे की मुंतज़मीन, तब कहीं जाके इतने बड़े जलसे वजूद में आते हैं। थोड़े से मजे के चक्कर में जलसे को खराब ना करो। मुफ्ती निजामुद्दीन से पूछो, काजी साहब से पूछो, पैरों में दर्द होने लगा होगा चंदा इकट्ठा करके करके। आप खामोशी के साथ तवज्जो मेरी तरफ दीजिए। 1969 के अंदर 3 लोग चांद पर गए, नाम नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग,
बुश और माइकल कॉलिंस, इन 3 का नाम आया। अब बताओ क्या कुरान में इनका जिक्र आया? क्या कुरान के अंदर भी इसका सबूत है कि जो 3 लोग चांद पर गए हैं? कब? 1969 में गए हैं। अब 2023 चल रही है। ज्यादा लंबी बात नहीं है, ज्यादा दूर की बात नहीं है। और कुरान 1450 साल पहले नाज़िल हुआ है। कहाँ जा रहे हो कुरान को छोड़ करके? देखो कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है, लेकिन शर्त यह है इतना इल्म होना चाहिए, शर्त यह है इतनी सलाहियत होनी चाहिए, शर्त यह है इतनी काबिलियत होनी चाहिए। 3 लोग चांद पर गए, क्या इसका जिक्र कुरान के अंदर आया? तो आओ मैं आपको कुरान शरीफ की आयत पढ़ के सुनाता हूँ। सूरह रहमान में रब इरशाद फरमाता है, या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब इरशाद फरमाता है, ऐ जिन्न और इंसान के गिरोह, अगर तुम आसमान के किनारों से गुजरना चाहते हो तो गुजर जाओ। जहाँ जाओगे वहाँ अल्लाह की बादशाहत पाओगे, जहाँ जाओगे वहाँ अल्लाह की हुकूमत पाओगे। पता चला इंसान आसमान के किनारों से गुजरेगा, पता चला इंसान आसमान के किनारों को अबूर करेगा। मेरे प्यारे मुसलमानों, अगर उनमें इतना ही दावा था तो वो सुरैया तक क्यों नहीं पहुंचे? मेरे प्यारे मुसलमानों, आओ अपने सहन को करीब करो। किसके? अपोलो 11 पे सवार होकर के गए थे। ये मिशन अपोलो 11 के तहत अंजाम पजीर हुआ था। हजरात, जब ये 3 लोग चांद पर पहुंचे थे, किसके? अपोलो पे सवार होकर के गए। हजरात, तुम जानते हो सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया? तुम जानते हो अपनी तारीफ तुमने भुला दी, तुमने अपनी तारीफ को फरामोश कर दिया। अरे आज जो हमसे ये दावा करते हैं कि मुसलमान कौम तालीम में पीछे होती जा रही है, आज हम सही बात है, हम अपनी तालीम, अपने मजहब की तालीम हासिल नहीं करते। आज हम तालीम में पीछे होते जा रहे हैं। तकरीबन 95% मुसलमान जो है वो तालीम याफ्ता नहीं है। हजरात, बहुत कम लोग हैं जो तालीम हासिल करते हैं। लेकिन इतना याद रखना, किसके? अपोलो पे सवार होकर के गए। सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया था? सबसे पहला हवाई जहाज मस्जिद कुर्तुबा के अंदर बैठ करके कुरान शरीफ पढ़ करके परिंदे का तसव्वुर लेकर के हजरत अब्बास बिन फरनास ने सबसे पहले मुहद्दिस जो है उन्होंने सबसे पहला हवाई जहाज बनाया था। उसकी पूंछ नहीं बनाई थी, और जब उसको उड़ाया तो लैंडिंग के वक्त क्रैश हुआ था, लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया। हजरात, वो जहाज जो है वो 7-8 मिनट तक उड़ा भी है फिजा में, लेकिन परिंदे को जो मेंटेन करती है ना फिजा में, वो उसकी पूंछ है। वो पूंछ की वजह से फिजा में मेंटेन रहता है। हवाई जहाज सबसे पहला बनाया गया, उसकी पूंछ नहीं बनाई गई, इसलिए वो उतरते वक्त लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया। तो ये सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया था? जहन दिया हुआ एक मुसलमान का है, और बनाया हुआ एक मुसलमान का है। फिर इसको राइट बिरादरान ने अपना नाम दे करके इसको आगे बढ़ाया गया। आज इंसान समझता है कि ये अमेरिका की तहकीक है, आज इंसान समझता है कि ये जापान की तहकीक है, आज इंसान समझता है कि ये रूस की तहकीक है। अरे ये हमारी दी हुई चीजें हैं। सबसे पहला हवाई जहाज हजरत अब्बास बिन फरनास ने बनाया था, और सबसे पहला कागज हजरत यूसुफ बिन अमर ने बनाया था, और पहला कागज रुई से बनाया गया था। आज कागज किससे बनता है? आज दरख्त से कागज बनता है। दरख्त को काटा जाता है, पेड़ को काटा जाता है, मशीन के अंदर डाला जाता है, उसको बारीक पीस लिया जाता है, उस पे केमिकल लगा करके आज अखबार बनाया जाता है, आज कागज बनाया जाता है। पहले कागज रुई से बनता था, और सबसे पहला कागज हजरत अब्बास बिन फरनास ने बनाया है। सबसे पहली घड़ी किसने बनाई है? सबसे पहली घड़ी हजरत यूसुफ बिन अमर ने बनाई है, जिन्होंने दमिश्क की जामा मस्जिद में इस घड़ी को लगाया था। ये मेरे प्यारे मुसलमानों, आज जिसके ये नाश कर रहे हैं, ये एक मुसलमानों की देन है, ये मुसलमानों की तहकीक है। आज वो घड़ी जिसको देख करके तुम टाइम मिलाते हो, वो एक मुसलमान की देन है। और आला हजरत के कुर्बान चाहिए, आला हजरत को अल्लाह ने वो मकाम दिया था कि आला हजरत घड़ी को घड़ी से देख के नहीं मिलाते थे, बल्कि दिन में सूरज देख करके घड़ी का टाइम मिला दिया करते थे, और रात में सितारे और चांद को देख करके घड़ी का वक्त मिलाते थे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खुशियत, आला हजरत
उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा फरमान मंजरी साहिब किबला। ये कुरान है। वाह, क्या आला हजरत किसी यूनिवर्सिटी में गए थे? क्या आला हजरत किसी कॉलेज में पढ़ने गए थे? अल्लाह अकबर। अल्लाह बरेली शरीफ की सरजमीन पे तालीम हासिल की है अपने वालिद अल्लामा नकी अली खान के पास। अल्लाह अपने वक्त का वो मुहक्किक, अपने वक्त का बड़े से बड़ा साइंसदान आला हजरत के कदमों की खाक को अपने सर पे रखने के लिए फख्र महसूस करता है। आप देखते नहीं, जब सबसे पहली शुगर मिल लगी थी, चीनी मिल, तो उसमें क्या हुआ था? ये अफवाह फैला दी गई थी, मुसलमानों में ये कहा गया कि इसमें खिंजीर की चर्बी मिलाई जाती है चीनी के अंदर, शुगर के अंदर। गैर मुस्लिमों में कहा गया कि इसमें गाय की चर्बी मिलाई जाती है। दोनों ने हाथ खड़े कर लिए। मुसलमान कहते हैं हम चीनी नहीं खाएंगे, उधर गैर मुस्लिम कह रहे थे हम चीनी नहीं खाएंगे। इस किस्सा आया बरेली के अहमद रजा के पास, फतवा आया आला हजरत के पास में। मेरा इमाम गया शुगर मिल में और जा के तलाश किया, देखा कि चीनी बनती कैसे है। पूरा मुआयना करने के बाद में इंजीनियर थे, सब साथ में थे, कहा हम हुजूर ऐसा कुछ भी नहीं करते, आप देख लीजिए चीनी कैसे बनती है। आला हजरत ने पूरी शुगर मिल का मुआयना किया। उसके बाद ऑफिस में आके बैठे और कहा कि हम लिख देंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, न इसमें खिंजीर की चर्बी मिलती है, न इसमें गाय की चर्बी मिलती है, हम लिख देंगे, लेकिन एक मशवरा दे के जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा हुजूर क्या मशवरा है? फरमाया कि देखो चीनी मोटी भी है और पीली भी है, हम इसको एक नुस्खा, तो एक बात तुम्हें बता के जाते हैं। अगर आग का तापमान कम कर दिया जाए और एक बोल्ट के ऊपर हाथ रख के कहा मशीन के इस बोल्ट को ढीला कर दो, दूसरे पे हाथ रख के कहा इसे टाइट कर दो, इंजीनियर बोले हुजूर मशीन फट जाएगी। आपने फरमाया ऐसा करो। जब उन लोगों ने ऐसा किया तो चीनी सफेद भी हो गई और चीनी बारीक भी हो गई। वो बदलों में गिर के इंजीनियर कहते हैं कहाँ पड़े हो? फरमाया मैंने कुरान पढ़ा है। तो हैरत से देख के कहते हैं अरे जब बरेली के अहमद रजा के इल्म के आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा के जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये कुरान है, ये हमारा कुरान है, हर चीज कुरान के अंदर मौजूद है। और आप देखो आला हजरत अजीमुल बरकत कुरान शरीफ कहा है आपने, अल्लाह तबारक व तआला ने 55 उलूम से ज्यादा उलूम में आपको महारत फरमाई। और आज भी रिसर्च चल रहा है, आज भी तहकीक चल रही है। अब जो रिसर्च किया गया है तो ये बात साबित हुई है कि आला हजरत 100 से ज्यादा उलूम में महारत कामना रखते थे। इल्मे हदीस में देखो तो आला हजरत का जवाब नहीं, इल्मे कुरान में देखो तो आला हजरत का जवाब नहीं, हमने तफसीर में देखो तो आला हजरत का जवाब नहीं, इल्मे रियाजी में आला हजरत का जवाब नहीं, इल्मे बायोलॉजी में आला हजरत का जवाब नहीं, इल्मे हिंसा में आला हजरत का जवाब नहीं, और इल्मे मंतिक में आला हजरत का जवाब नहीं, इल्मे फलसफा में आला हजरत का जवाब नहीं। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, इल्मे नहव में देखो तो आला हजरत का जवाब, इल्मे सर्फ में देखो तो आला हजरत का जवाब। प्यारे मुसलमानों, 100 से ज्यादा उलूम पे महारत कामना हासिल रखने वाला वो अपने वक्त का इमाम। पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में 32 इल्म पढ़ाए जाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 32 इल्म पढ़ाए जाते हैं। आला हजरत की असमत पे कुर्बान जाओ, आला हजरत को 100 से ज्यादा उलूम पर महारत कामना हासिल थी। जहाँ दुनिया की यूनिवर्सिटी जवाब दे देती है, जहाँ दुनिया की यूनिवर्सिटी की तालीम का इख्तिताम हो जाता है, वहाँ से मेरे इमाम के इल्म का आगाज होता है, वहाँ से आला हजरत के इल्म की शुरुआत होती है। इसीलिए शायर पुकार करके कहता है माना अरब ने तुझको जगाना, गाया आदम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हम ये सुन्नत आना। वादी रजा की कोहे हिमाना रजा का है, जिस्म देखिए वो इरादा रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो से इस सदी में वो तन्हा रजा का। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान कहा है मेरे इमाम ने,
دنیا کی یونیورسٹی فیل ہے میرے امام کے سامنے. یہ ہے علم اور یہ ہے قرآن کی شان. تو سب سے پہلا کاغذ ایک مسلمان نے بنایا. سب سے پہلا ہوائی جہاز ایک مسلمان نے بنایا. سب سے پہلی گھڑی ایک مسلمان نے بنائی. آج جو کاغذ بنتا ہے وہ کس سے بنتا ہے؟ لکڑی سے بنتا ہے. لکڑی سے بنتا ہے. توجہ میری طرف دینا. اب ایک ایسا جملہ دوں گا, اگر باقی حافظ قرآن سے محبت ہوگی تو اب ایک بھائی بھی خاموش نہیں رہے گا. یہ میری علماء سے دعاؤں کی درخواست ہے. دیکھیں کاغذ کس سے بنتا ہے؟ لکڑی سے بنتا ہے. لکڑی کو مشین میں ڈالا جاتا ہے, باریک پیسا جاتا ہے, کیمیکل ملا کر کے اس سے کاغذ تیار ہوتا ہے. اب کاغذ جو ہے, ایک کاغذ وہ ہے جس پہ چھوٹا آ بڑا آ لکھا ہوا ہے, ایک وہ ہے جس پر ABCD لکھا ہوا ہے, A فور ایپل, B فور بوائے, یہ سب لکھا ہوا ہے. تو اس کو بچہ کہاں لے کے جاتا ہے؟ پیٹ کے پیچھے بستے پہ لاد کر کے لے جاتا ہے کہ نہیں لے جاتا ہے؟ جب وہ اسکول پڑھنے جاتا ہے تو پیٹ کے پیچھے لاد کر کے لے جاتا ہے. اور ایک بچہ جو قاعدہ بغدادی ہے, یہ یسمن القرآن ہے, یہ قرآن شریف کا پہلا پارہ ہے, کیا اسے پیٹ کے پیچھے لے کے جاتا ہے؟ نہیں, سینے سے لگا کے لے جاتا ہے. اسکول کے بستے سے پوچھا تجھے پیچھے ڈال کے کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ تو وہ بستہ اپنی زبان میں یہ کہتا ہے کہ قرآن کی تعلیم میں اور دنیاوی تعلیم میں بہت بڑا فرق ہے. ارے قرآن سینے سے لگا ہوا ہے اور سامنے ہے, جو قرآن پڑھتا ہے وہ تعلیم اس کو آگے بڑھا کے لے کے چلی جائے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہ قرآن ہے. وہ چھوٹا آ بڑا لکھا ہوا ہے. اس کاغذ کو کیا کیا کرنے کے بعد میں بچہ پڑھا, آگے اس کا پروموشن ہوتا رہا, پاس ہوتا رہا. وہ بچہ انجینئر بن گیا, وہ بچہ ڈاکٹر بن گیا. وہ چھوٹی سی کتاب جو اس کے الماری میں رکھی تھی, آپ نے کیا کیا اس کی وہ کتاب اٹھائی. اٹھانے کے بعد میں اس کو لے جا کے بھنگار والے کے ہاتھ بیچ دیا. بھنگار والے نے کیا کیا ان کتابوں کا ہوٹل والے کے ہاتھ بیچ دیا. اب ہوٹل والے نے کیا کیا, ہوٹل والے نے اس کو اپنے سائز میں کاٹا اور کسی پہ سموسا رکھ کے بیچا, کسی پہ پکوڑی رکھ کر کے بیچی, کسی پہ جلیبی رکھ کر کے بیچی. یہی تو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ہندی انگلش کی کتابوں کا کیا ہوتا ہے؟ بھنگار والا خرید کے لے جاتا ہے, پھر اس کو جو ہے اپنے اپنے سائز میں دکاندار کو بیچ دیتا ہے. وہ اس میں سموسا رکھ کے یا بریڈ پکوڑا یا پکوڑی یا جلیبی رکھ کر کے بیچ دیتا ہے. اس کے بعد کھانے کے بعد کیا کرتے ہو؟ کیا وہ کاغذ جیب میں رکھا جاتا ہے؟ نہیں, اس کاغذ کو زمین پہ پھینک دیا جاتا ہے. اب وہ کاغذ نالی میں پڑا ہوا ہے. اب وہ کاغذ نالی میں ہے, گندگی میں پڑا ہے. ذرا سوچو تو صحیح, جس نے انجینئر بنایا وہ تو آفس میں بیٹھا ہے, بننے والا آفس میں ہے, بنانے والا نالی میں پڑا ہوا ہے. جس نے ڈاکٹر بنایا وہ تو ایئر کنڈیشن روم میں ہے, آئی فون چلا رہا ہے, اسکارپیو فارچونر سے گھوم رہا ہے. اور جس نے بنایا وہ نالی میں پڑا ہوا ہے. صحابہ کے زندہ دل مسلمانوں, جشن دستانے حفظ قرآن میں آنے والوں, اپنے ایمان کو تازہ کرو. دیکھو قرآن کی شان کیا ہے. ایک وہ جس نے انجینئر بنایا, بننے والا آفس میں بیٹھا ہے, بنانے والا نالی میں پڑا ہوا ہے, کیچڑ میں پڑا ہوا ہے, گندگی میں پڑا ہوا ہے. سیم مشین ہے, سیم درخت ہے, سیم کاغذ ہے, لیکن چھوٹا آ بڑا لکھا ہوا نہیں ہے, بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. اس کاغذ کو کوئی عالم فتویٰ نہیں دے گا, کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے گا, ارے کوئی محدث فتویٰ نہیں دے گا. اس کاغذ کے لیے پروردگار فرما رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون. اس کاغذ کو بغیر وضو کے چھونا بھی مت. جس کے قرآن لکھا ہے اسے بغیر وضو کے چھونا بھی مت. کاغذ ایک وہ ہے جو نالی میں پڑا ہے, اور ایک کاغذ وہ ہے جس کے لیے اللہ فرما رہا ہے اسے بغیر وضو کے چھونا بھی مت. میں نے کاغذ سے پوچھا, ایک کاغذ ذرا یہ تو بتا, تو نالی میں پڑا ہے, اور ایک وہ کاغذ ہے جسے میں فرما رہا ہے کہ اسے بغیر وضو کے چھونا بھی مت. تو کاغذ سے آواز آتی ہے, ارے کاغذ کو مت دیکھ, اس سے لکھا ہوا دیکھ, اس پر قرآن لکھا ہوا ہے. ارے چپ, ارے چپ, علماء کی توجہ, ارے چپ. کاغذ پر قرآن لکھ جائے تو کاغذ ممتاز ہو جائے, تو جن حافظ کے سینے میں قرآن کے 30 پارے ہیں اس حافظ کے سینے میں
मसलब कुरान मकाम कुरान जिसने दस्तार बंदी शहादत सुन्नी मुसलमान उलमा फुरकान रमज़ली साहिब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। जब कागज पे कुरान लिख जाए तो कागज अजमत वाला हो जाए, तो जिस हाफिज ने 30 पारे अपने सीने में महफूज कर लिए उस हाफिज के सीने का आलम क्या होगा, उस हाफिज की शान का आलम क्या होगा। दूर जाने की जरूरत नहीं। ये रामपुर वालों, मिशकात शरीफ की हदीस पाक आका इरशाद फरमाते हैं कुरान को जिल्द में लपेट करके आग के अंदर डाल दिया जाए तो उस कुरान को आग नहीं जला सकती। बेशक अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उस कुरान को आग नहीं जला सकती। तो जिस सीने में कुरान महफूज होगा उसे जहन्नम की आग कैसे जला सकती है? क्या बात है। उसे जहन्नम की आग कैसे जला सकती है? दूर जाने की जरूरत नहीं। आओ मैं बरेली शरीफ लेके चल रहा हूँ, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बाकरगंज मोहल्ला देखा है? बाकरगंज सिटी की तरफ से जब आएंगे तो एक मोहल्ला पड़ता है जिसे कहते हैं हुसैन बाग। हुसैन बाग के कब्रिस्तान में एक अल्लाह का नेक बंदा लेता है जिसे दुनिया वाले हाफिज रहमत अली खां के नाम से जानते हैं। सुभान अल्लाह। नवाब हाफिज रहमत अली खां। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि रोड के किनारे जो अक्सर मस्जिदें बनी हुई हैं ये हाफिज रहमत अली खान ने अपने माल से खर्च करके जो है मस्जिदें तामीर कराई। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे उस्ताद मुझसे कह रहे थे कि उनकी एक बहन थी बीबी जी साहिबा। उन्होंने अपने भाई से कहा, भाई आप हमारी शादी का रिश्ता तलाश कर रहे हैं? कहा हाँ। कहा भाई रिश्ता तलाश मत करो, मेरी शादी में खर्च कितना करोगे, कितने पैसे खर्च करोगे? तो नवाब थे, ले बहन बता क्या चाहिए तुझे? कहा कि जो पैसे खर्च करो मेरी शादी में वो मुझे दे दो। भाई ने पैसे दे दिए। उन्होंने अपने उन पैसों से मस्जिद बीबी जी तामीर कराई जिसके आज मजहर इस्लाम बना। क्या बात है। आप देखें कि नवाब हाफिज रहमत अली खां कौन है। जब पीलीभीत शरीफ की जामा मस्जिद की बुनियाद का नंबर आया जो दिल्ली की जामा मस्जिद की हूबहू कॉपी है, तो ये शर्त रखी गई वो बुनियाद रखेगा जिसकी नमाज सुन्नत गैर मुअक्कदा कज़ा ना हुई हो और जिसकी तहज्जुद कभी ना छूटी हो। बड़े बड़े मुफ्ती पीछे हट गए। अपने वक्त का नवाब हाफिज रहमत अली खां आगे बढ़ के कहते हैं वो मैं हूँ जिसकी ना तहज्जुद की नमाज कज़ा हुई है न सुन्नत गैर मुअक्कदा कज़ा। बेशक क्या बात है। इतना बड़ा अपने वक्त का नवाब, हुकूमत करने वाला, इतना बड़ा शरीयत का पाबंद। लेकिन आप देखो जब इस देश को आजाद कराने का नंबर आया तो खून मुसलमानों ने कुर्बान किया। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हम वफादार नहीं तो तू भी तो दिलदार नहीं। आज भी दिल्ली में इंडिया गेट पे जाकर के देखो 1 लाख स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने जंगे आजादी में जो है वो अपनी कुर्बानी दी है। उनमें 76,000 नाम मुसलमानों के लिखे हुए हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 76,000 नाम मुसलमानों के हैं। तुम देख लो तारीख उठा करके। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली के लाल किले से गिरफ्तार करके अंग्रेज जब लेके चले थे, एक अंग्रेज का ये कहना था कि फजर के वक्त हम लेके जा रहे थे, सुबह के वक्त तो चांदनी चौक में कोई दरख्त ऐसा नहीं था, कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिसपे आज हमारी कौम के आलिम की गर्दन न लटकती हो। और एक दरिया था उसके वहां पर तालाब में वो कड़ाव के अंदर तेल खोल रहा था। उलमा को बोरियों के अंदर बंद कर करके उस खोलते हुए कलाव के अंदर डाल दिया गया। अल्लामा फजले खैराबादी जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था वो एक मुसलमान था। मौलाना किफायतुल्लाह काफी जिनको मुरादाबाद के चौराहे पे अंग्रेजों ने सूली पे चढ़ा दिया, वो एक मुसलमान थे जो आप सूली पे चढ़ने से पहले ये कह के गए थे कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अदल
कसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने पे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में हैं कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। नाम सहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन मगर नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा। वो मौलाना किफायतुल्लाह काफी वो एक मुसलमान थे। मौलाना फजले हक खैराबादी जब दिल्ली की जामा मस्जिद से आप खिताब करते थे तो गैर मुस्लिम कहते थे इस मस्जिद के अंदर रोशनदान खोल दो ताकि हम उस मुजाहिद को देख ले जिसने हमारे मुल्क को आजाद करने की आवाज उठाई है। हम उस मुजाहिद को देख ले जिसने हमारे मुल्क की आजादी के लिए आवाज उठाई है। ऐसा बात वालों उनसे ये कह दो कि हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। जमीन खोद तो हम ही निकलेंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। आज जब गैर मुंतसिब हिंदुस्तान और पाकिस्तान लाहौर की जामा मस्जिद के अंदर तकरीबन 80 से ज्यादा मुसलमान आलिमों की गर्दनें लटक रही थी, वो कुर्बानी दी है उलमाए किराम ने मुसलमानों ने इस देश को आजाद कराने के लिए। फिर भी हमसे नागरिकता पूछी जाती है, फिर भी हमसे सबूत मांगे जा रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आओ मैं बड़े करीब से आपको मुसलमान की शान दिखा के बैठ जाऊंगा और एक हाफिज का मकाम बता करके गुजरना चाहता हूँ कि हाफिज होता कौन है, हाफिज की शान क्या है। क्या बात ज़िम्न में आ गई है इसलिए बता रहा हूँ। हजरत हाफिज रहमत अली खां जिन्होंने जंग आजादी में जामे शहादत नोश किया है। रात जब जंग हो रही थी अंग्रेजों से तब हाफिज रहमत अली खान ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया। फरमाया इस फौज को 2 हिस्सों में तकसीम करो, आधी फौज जो है वो नमाज पढ़ेगी और आधी फौज जो है वो जंग में मसरूफ रहेगी। आधी फौज नमाज पढ़ने चली गई और आधी फौज जो है वो अंग्रेजों से जंग लड़ती रही। जब वो नमाज पढ़ के आई तो जो जंग में थी उसे कहा कि तुम नमाज पढ़ने जाओ, अब ये फौज जो है वो जंग करेगी। ये नमाज की पाबंदी थी तो मैदान जंग में भी जो है नमाज की पाबंदी करता हो उसे दुनिया वाले हाफिज रहमत अली खां के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों ने निशाना तोप के गोले का हाफिज रहमत अली खां के सीने पे बांध करके मारा, सीने पे तोप का गोला लगा, जमीन के अंदर 2-3 फीट अंदर चला गया, सीने का कुछ नहीं हुआ। अंग्रेज हैरत से देखने लगा कौन सी जैकेट पहन के आया है, कौन सी सिलेक्टिव जैकेट इसने पहनी है, सीने पे तोप का गोला लगा है और इसके सीने का कुछ नहीं हुआ। वो तोप का गोला जो बस्ती में गिर जाए तो बस्ती तबाह कर दे, जो कस्बे में गिर जाए तो कस्बे का नामो निशान मिटा दे, जो शहर में गिर जाए तो शहर को जो है नक्शे से मिटा दे। वो गोला हाफिज रहमत अली खां के सीने पे लगा, कुछ नहीं हुआ, जमीन के अंदर धंस गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी में आपको शहादत का जाम अता फरमाया। हाफिज रहमत अली खां शहीद हो जाते हैं। अंग्रेजों ने जिस्म को अपने कब्जे में लेकर के आपका कुर्ता हटा के देखने लगे। किसी मुसलमान ने पूछा चंद सांसें बाकी थी, क्या तलाश कर रहे हो? कहा ये देख रहे हैं कौन सी जैकेट पहने हैं, इनके सीने का कुछ क्यों नहीं हुआ? हमने तोप का गोला निशाना बांध के मारा तब भी इनके सीने का कुछ नहीं हुआ, कौन सी ऐसी जैकेट पहने हैं? तब मुसलमान ने कहा था अरे तुम्हें पता नहीं है, अरे ये दुनिया की आग है, ये दुनिया की आग तो क्या है, इनके सीने को जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। हमारे तोप के गोले से इनका सीना क्यों नहीं फटा? तो मुसलमान ने कहा था अरे मुझे पता नहीं है, ये कुरान के हाफिज थे, कुरान जिस सीने में आ जाता है वो सीना आग से महफूज हो जाता है। ये हाफिज रहमत अली खां को दुनिया की आग का है जहां की आग भी नहीं जला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसलत, अस्लगे आला हज़रत हज़रत अल्लामा फरमान मुदरी सईद। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। बेशक सुभान अल्लाह। कुरान हाफिज़े कुरान बना लो। कुरान जिस सीने में आ जाए वो सीना आग से महफूज हो जाए। बाअमल हाफिज़े कुरान की शान है, इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों। आओ जरा देखो, आखिरी बात बता दो कुरान की शान क्या है। ये हुफ़ाज़े किराम ने अपने सीने में कुरान महफूज कर लिया है। अब मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है, आप परेशान न हो, आप परेशान नहीं हो रहे। कुरान
یہ جشن دستار حفظ قرآن ہے نا، اسی لیے قرآن پہ میں بول رہا ہوں قرآن کی شان کیا ہے، ورنہ تقریریں آپ کو ہر موضوع پہ انٹرنیٹ پہ مل جائیں گے، فرقان نظام منظری سرچ کریں گے ہر موضوع پہ آپ کو تقریر ملیں گی بفضل ہی تعالیٰ۔ یہ کرم ہے اولیاء کرام کا، مفتی صاحب کی دعائیں ہیں۔ آپ دیکھیں میں قرآن کی شان بتا رہا ہوں، قرآن ہے کیا؟ آج ہم قرآن کو چھوڑ کر کے سوچ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، نہیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھا لو۔ اے میرے بزرگوں، اتنا یاد رکھنا، اپنی اولاد کو ایسی تعلیم دے کے جانا جہاں اولاد کے اوپر ماں باپ کے حق ہیں، وہیں اولاد کے بھی حق ماں باپ کے اوپر ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ سب سے پہلی بات حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اولاد کے دل میں ڈال دو، نبی کا پیار اولاد کے دل میں ڈال دو۔ نبی کی محبت یا فلمیں دکھانے سے پیدا ہوگی، نبی کی محبت یا بچوں کو گانے سنانے سے پیدا ہوگی، نبی کی محبت یا کارٹون دکھانے سے پیدا ہوگی، نبی کی محبت کیا انہیں بچپن ہی سے گیم کھیلنے کی عادت بنانے سے پیدا ہوگی؟ نہیں پیارے مسلمانوں، نبی کی محبت قرآن پڑھنے سے پیدا ہوتی ہے، نبی کی محبت درود شریف پڑھنے سے پیدا ہوتی ہے، نبی کی محبت اچھی آواز میں نعت پاک سننے والے سے پیدا ہوتی ہے۔ نبی کی محبت اپنی اولاد کے دل میں ڈال دو، جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے، جس کے دل میں نبی کا پیار ہوتا ہے، اسے آگ کے شعلوں پہ بھی لٹایا جاتا ہے، کبھی کوئی اس کے ایمان کو ہلا نہیں پاتا ہے۔ جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے، اسے گرم گرم لو کے تھپیڑوں پہ لٹایا جاتا ہے، تب بھی وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا ہے۔ جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے، اسے جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، تب بھی وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر کو دیکھو، آگ کے اندر ڈال دیا گیا، جلتی ہوئی آگ کے اندر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ میرا حال دیکھیے، آپ کے غلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ آقا گزر رہے تھے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے، یا نارو کونی مردوں وسلامن علی عمار کما کنتے علی ابراہیم، اے آگ عمار میں ویسے ہی ٹھنڈی و سلامتی والی بن جا جیسی حضرت ابراہیم یہ ٹھنڈی و سلامتی والی ہو گئی تھی۔ حضرت عمار ابن یاسر آگ سے باہر نکل آئے، تب کافروں نے ایک سوال ہو کے کہا تھا، اے عمار ابن یاسر بتاؤ اگر تم دولت چاہتے ہو تو دولت دے دے، اگر تم پیسہ چاہتے ہو تو پیسہ دے دے، تم کسی قبیلے کی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہارا نکاح کرا دیں گے، اگر تم سرداری چاہتے ہو تو تمہیں سرداری دے دیں گے۔ بتاؤ کیا تم نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ سکتے ہو، نبی کی محبت دل سے نکال سکتے ہو؟ تب حضرت عمار ابن یاسر نے فرمایا اس سارے کافروں سن لو، تم ساری دنیا کی دولت لا کر کے میرے ہاتھ پہ رکھ دو، تب بھی میں اپنے نبی سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ بریلی کے امام کی نظر پڑی، بریلی سے پکار کے کہتے ہیں ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منہم رگڑ کر ایڑیاں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نبی کی محبت اولاد کے دل میں ڈال دو۔ دوسری بات آقا فرماتے ہیں حب اہل بیت، میرے اہل بیت کی محبت اولاد کے دل میں ڈال دو۔ اہل بیت کی محبت جہنم سے بچاتی ہے، نبی کی محبت جہنم سے بچاتی ہے۔ اور اس حدیث کو جس مقصد کے تحت میں نے پڑھا وہ تیسری بات سنو اور اس پر عمل کرنا شہباز والو۔ میرے آقا فرماتے ہیں وقراءۃ القرآن، اور اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم کرنا سکھاؤ۔ بے شک اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تعلیم قرآن کی دلائے دنیا سے چلے گئے، بے شک تو وہ اولاد تمہارے لیے مثال ثواب نہیں کرائے گی بلکہ بٹوارے کے لیے لڑائی اور جھگڑے کرتی نظر آئے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس لیے اولاد کو اس حال میں دنیا سے چھوڑ کے جاؤ کہ جب جنازہ اٹھنے والا ہو تو وہ بٹوارے کی لڑائی نہ کرے بلکہ سرحانے بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتی نظر آئے، قرآن کی تلاوت کرتی نظر آئے۔ ہم نے دنیا کا جائزہ لیا ہے، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ وہ جو ناز کرتے تھے کہ میرا بیٹا فلاں جگہ جاب کر رہا ہے، میرا بیٹا فلاں منصب پہ قائم ہے، میرا بیٹا اتنے پیسے مہینے میں کما کے لاتا ہے، ہم نے دیکھا جب وہ دنیا سے چلے گئے تو وہ رومال چھوٹا سا سر پہ رکھ کے دور کھڑے ہو کے امام صاحب کہتے ہیں جنازے کی نماز پڑھانے کی اجازت دو، تو وہ دور سے کہتے ہیں پڑھاؤ مولانا صاحب نماز جنازہ پڑھاؤ۔
हो, अल्लाह अकबर। वो जो जनाजे में लेटा है ना, वो चौराहे पे खड़े होके कहता था, मेरा बेटा इतने पैसे कमाता है, मेरा बेटा फला मनसब पे फाइज है, मेरा बेटा फला जगह जॉब करता है, मेरा बेटा फैमिली के साथ फला जगह रहता है। उसका मुंह नहीं थकता था तारीफ करते करते। अब देखो वो जनाजे की चारपाई में लेटा है, कोई चीखे सुनने वाला नजर नहीं आ रहा है। नमाज जनाजा पढ़ने खड़ा हुआ तो नीचे रुमाल बिछा दिया। किसी आलिम ने पूछा ये रुमाल क्यों बिछाया? कहता यहाँ तो सब बिछी हुई नहीं है, सजदा करूंगा तो मेरी पेशानी पे गर्द लग जाएगी। तो किसी आलिम ने कहा, अरे तुझे पता नहीं है नमाज जनाजा में सजदा नहीं होता है। वो जो सीना तान के कहता था, मैंने फला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कराया है, मैंने फला कॉलेज में अपने बेटे को पढ़ाया है, अब उसकी चीजें सुनने वाला कोई नहीं है। वो कोई इस चीज के कह रहा था, अरे सालिम नमाज जनाजा में सजदा नहीं होता है। काश मैंने तेरी तालीम पे लाखों रुपये खर्च न किए होते, करोड़ों रुपये खर्च न किए होते, बल्कि मैंने तुझे मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठाया होता और नबी का लाया हुआ कुरान पढ़ाया होता तो दूर खड़ा नहीं होता, बल्कि जनाजे की नमाज पढ़ा करके मेरे लिए बख्शिश की दुआ नजर आता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, बच्चों को कुरान पढ़ाओ, बच्चों को कुरान की तालीम दो, बच्चों को दीन की तालीम दो, बच्चों को शरीयत की तालीम दो, कि कहीं ऐसा न हो मरने के बाद पता नहीं कौन हमारे काम आए। हम आपसे पूछते हैं, आप कितना अपने बाप की कब्र पे जाते हो, आप कितना अपने दादा की कब्र पे जाते हो? आज का दौर बड़ा मसरूफियत का दौर है, आज का दौर बड़ा मशगूलियत का दौर है। अगर कोई किसी के यहाँ शादी में जाता है तब जाता है जब खाना खिलाने का वक्त होता है, किसी के यहाँ इंतकाल में जाता है तब जाता है जब मैयत की दफन होने के करीब होती है। पूछा जाए फौरन दफन के बाद घर वापस, पूछा क्यों जा रहे हो? बड़े अजीज का जनाजा था, बड़े अजीज के यहाँ शादी थी, तुम क्यों जा रहे हो? कहता है दुकान खुली छोड़ के आया हूँ, कारोबार छोड़ करके आया हूँ। मैं अगर यहाँ रहूंगा तो दुकान मेरी मार्केट में मेरी दुकान कैसे, मेरी गिराकी खराब हो जाएगी, इसलिए मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता। शाहबाद के जिंदा दिल मुसलमानों, जवाब से आने वालों, जब आज किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है तो क्या उम्मीद करते हो इस औलाद से, जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे फिल्में देखने से फुर्सत नहीं मिलती? क्या वो तुम्हारी कब्र पे जाके कुरान पढ़ेगी? क्या वो तुम्हारी कब्र पे जाकर के इसाजे सवाब करेगी? वो 2.5 घंटे की फिल्म देख ले लेकिन बाप से बात नहीं करती। वो कौन जो 2.5 घंटे की फिल्म बैठ करके देखे, 10 मिनट अपने बाप के पास बैठ करके बातें नहीं करती, वो क्या तुम्हारी कब्र में जाकर के इसाजे सवाब करेगी? इसलिए अपनी औलाद को दुनिया से बचाओ। कोई हाल में जाना कि औलाद को या तो आलिम बना के जाना या हाफिज बना करके जाना, क्योंकि औलाद जब आलिम होगी या हाफिज होगी तो जब बाप की रूह निकलने का वक्त करीब होगा तो सहारे बैठ के सूरह यासीन की तिलावत करता नजर आएगा। जब जनाजा उठने का वक्त होगा तो वो कुरान की तिलावत करता नजर आएगा और नमाज जनाजा पढ़ाता हुआ नजर आएगा, कब्र पर बैठ करके कुरान की तिलावत करता नजर आएगा। इसलिए मेरे प्यारे मुसलमानों, बख्शिश की राह मोमिन को आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बनाना। क्या बात है, बहुत खूब, सुभान दीनी तालीम दिलाओ, वरना पता नहीं कि कोई हमारी औलाद कब्र पे आए फातिहा पढ़ने या ना आए, अल्लाह। कोई भरोसा नहीं है। ये आजकल का मुसलमान, एक दुखती हुई बात मैं आपको बता दूं, हो सकता है इतने बड़े मजमे में कोई एक भी अमल कर दे तो मेरे लिए कयामत में बख्शिश का जरिया बन जाए। मुसलमानों का ये हाल हो चुका है। अभी एक फिल्म रिलीज हुई, चंद दिन हुए हैं, 3-3 हजार के टिकट खरीद के ये मुसलमान देखने के लिए गए। हैदराबाद में तो कुछ एक तो ऐसा है जिसने 3 दिन के लिए पूरा हॉल बुक कर लिया था। ये मुसलमानों का हाल है। अगर इन मुसलमानों की अमीरी देखना है तो इनके शौक को देखो, अगर इन मुसलमानों की अमीरी देखना है तो इनकी शादी में बेजा रसूमात को देखो। हजारों के बैंड, हजारों की डांस पार्टी, फला 50,000 की डांस पार्टी अपने बेटे की शादी में लाया, मैं 1 लाख की लेकर के आऊंगा। और अगर इनके हाल देखना है तो मज़ारात पे इनके हाल देखो, कव्वालियों में
क्या बात। 1-1 लाख रुपए में कव्वाल को बुला करके मुकाबले कराए जाते हैं। लेडीज कव्वाला वो अपनी लड़की को साथ लेके आती है माज़अल्लाह, और ला करके गंदी गंदी गजलें, गंदी फहिश बातें और ऐसी ऐसी गंदी बातें कि अगर आपके सामने कोई बोल दे तो मारने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन बहन भी बैठी हुई है, बेटी भी बैठी हुई है, बीवी भी बैठी हुई है और रिश्तेदार भी बैठ करके सुन रहे हैं। अगर कोई किसी के घर में सिर्फ छत पे चढ़ के झांक ले तो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। मेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरी बहन बैठी थी मेरे घर में झांका कैसे, मेरी बेटी बैठी थी अपने घर में झांका कैसे, और वो गंदे मुकाबले हो रहे हैं। कहाँ अल्लाह के वली के उर्स में हो रहे हैं। अल्लाह के वली के उर्स में माज़अल्लाह वो गैर मुस्लिम शेख चिल्ली को बुला करके कौम के सामने उर्स का मजाक उड़ाया जाता है। आज गैरों को देखो, वो अपनी किताबों पे खर्च कर रहे हैं, वो दीनी तालीमात पे खर्च कर रहे हैं, और मुसलमानों का हाल ये मुकाबलों पे पैसे खर्च कर रहे हैं, ये कव्वालियों में पैसे खर्च कर रहे हैं। अगर इन मुसलमानों की अमीरी देखना है तो इनकी शादियों को देखो, और इनकी गरीबी देखना है तो इनके मदरसों को देखो, इनकी कौम के इमामों को देखो। आज मदरसे वीरान कर दिए गए, आज मदरसे सूने कर दिए गए। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, अगर ये मदरसे बंद हो गए तो ये इस्लाम के सिपाही तुम्हें कहां से मिलेंगे। इसलिए हुकूमत भी जानती है, जहां जहां से मदरसे खत्म किए गए वहां वहां से इस्लाम मिटता चला गया। ये उलमा आपको बताएंगे, लंबी चौड़ी तकरीर करने नहीं आया, वरना बताता मैं तारीख से। सीरिया के अंदर, गरनाता स्पेन के अंदर आप देखें, जहां 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, फर्डिनेंड ने जब उस पे कब्जा किया, मदरसे पहले बंद कराई, मस्जिदें पहले बंद कराई। इस्लाम का नाम लेने वाला कोई वहां नहीं था, कोई मुसलमान आपको वहां नजर नहीं आता कुछ सालों तक। ये है, देखो हुकूमत जानती है, जहां जहां मदरसे बंद हुए वहां वहां इस्लाम मिटता चला गया। इसीलिए मदरसों का सर्वे कराया गया कि इन मदरसों को कॉलेज में कन्वर्ट कर दो, इन मदरसों को जो है वो स्कूल में तब्दील कर दो। न कौम के सिपाही पैदा होंगे, न ये कुरान पढ़ के तुम्हें तरावी में सुनाएंगे, न हाफिज़े कुरान होंगे, न आलिम दीन होंगे, न मजहब की बातें तुमको सुनाएंगे। इसलिए अपने मदरसों की हिफाजत करो, अपने मदरसों को तकबीयत पहुंचाओ। आज आलिम से मेरी कौम के लोग बात इसलिए नहीं करते कहीं रसीद लेके मेरे घर पे ना आ जाए। आज हाफिज से बातें इसलिए नहीं करते कहीं रसीद लेके मेरे घर पे ना आ जाए। मुझे बताओ शहबाज अब्दुल जवार से आने वालों, क्या इन्होंने कभी अपने घर के लिए तुमसे चंदा मांगा? क्या कभी इन्होंने अपने मदरसे के अलावा छोड़ करके कभी अपने लिए चंदा मांगा कि मेरे पास कपड़े फट गए हैं, मुझे पैसे दे दो, कपड़े बनाऊंगा, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, चंदा दे दो, मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा? कभी अपने लिए इन्होंने मांगा? नहीं मांगा। मांगा है तो रसूलुल्लाह के घर के लिए मांगा, मांगा है तो अल्लाह के घर के लिए मांगा। क्यों तुम क्या जानो इन उलमाए किराम ने, हुफ़ाज़े किराम को, जब तो वहाबी देवबंदियों ने, सऊदी रियाल के पढ़ने वालों ने, जब उन्होंने 1-1, 2-2 महीने में 3-3 मंजिला मदरसा बना करके तैयार कर लिया और फिर तालीम देना शुरू कर दी, तब मेरी कौम के आलिम जाके, तब मेरी कौम के हाफिज जाके, कहीं मेरी कौम के बच्चे उनके मदरसे में जाकर के अपना ईमान से हाथ न धो बैठे, कहीं मेरी कौम के बच्चे उनके मदरसे में जाकर के कहीं ऐसा ना हो कि वो उन्हीं के उसमें चले जाए। इसलिए मेरी कौम के आलिम निकले रसीद लेकर के, इसलिए मेरी कौम के हाफिज निकले रसीद लेकर के। ईद के दिन तुम्हारे बच्चे सिवई खाए और आलिम जाकर के फितरा इकट्ठा करे, बकरा ईद के दिन तुम्हारे बच्चे गोश्त खाए और आलिम जाकर के कुर्बानी की खाले इकट्ठी करे। तुम तो रमजान में तरावी पढ़ के चैन से सो जाते हो, वो मुंबई के सेठों के घरों पे चक्कर लगाता है, मुंबई के सेठों के घरों पे 2-2 घंटे तक लाइन में खड़ा रह करके मदरसे के लिए चंदा मांग करके लाता है। प्यारे मुसलमानों, ये आलिम है, ये मेरी कौम का हाफिज है, अपने लिए मांगना जिल्लत है। एक ही दर्द है इनके दिल में, एक ही दर्द है इनके सीने में कि रसूलुल्लाह का मदरसा आबाद रहे, रसूलुल्लाह की दरसगाह आबाद रहे, मदरसे के अंदर दीनी तालीम चलती रहे, मदरसे से हाफिज़े कुरान पैदा होते रहे, जाकर के वो दीन का काम करते रहे। ईद के दिन तुम सिवई खाओ, वो फितरा इकट्ठा करे, रमजान के महीने में वो बम्बई के सेठों के दरवाजे पे जाकर के चक्कर लगाए। इतना याद रखना, अपने लिए मांगना बाइस जिल्लत है और मदरसे के लिए मांगना बाइस तकबीर। अरे हाथ उठाकर बोलिए, नारे रिसालत, असलगे आला अज़मत कुरान।
अपने लिए मांगना जिल्लत है, मदरसे के लिए मांगना इज्जत है। कोई इनका मर्तबा जाने ना जाने, इनका मर्तबा नबी ने बुलंद कर दिया, इनकी शान नबी ने बुलंद कर दी, इनकी अजमत नबी ने बुलंद कर दी, इनका मर्तबा नबी ने बुलंद फरमा दिया है कि हाफिज़ कुरान क़यामत के दिन जब आएगा युक़ाल लिसाहिबिल कुरान इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्ना मंज़िलका इंदा आख़िरी आयतिन तक़रऊहा। आका फरमाते हैं हाफिज़ कुरान जब क़यामत में आएगा, रब फरमाएगा पढ़, कुरान की तिलावत कर, तजवीद के साथ पढ़, यालमून तालमून वाला नहीं, ठहर ठहर के पढ़, तजवीद के साथ पढ़, कौन सा हर्फ कहाँ से निकलता है उसकी अदायगी के साथ पढ़। हाफिज़ कुरान पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक दर्जा बुलंद हो जाएगा, पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दूसरा दर्जा बुलंद हो जाएगा। उलमा फरमाते पूरे कुरान में 6666 आयतें हैं जिन हुफ़ाज़ को इक़ारत की निगाह से देखा जाता है। इनका मर्तबा क़यामत में ये होगा कि ये जन्नत में 6666 दर्जे बुलंद होगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान नबी ने बुलंद कर दिया, इनकी शान नबी ने बुलंद कर दी। इसलिए प्यारे मुसलमानों, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। जब कुरान होगा उनके पास में, तालीम होगी उनके पास में, जब वो मस्जिद में जाएंगे तो नमाज पढ़ के ये दुआ करेंगे, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। दुआए मासूरा में पढ़ेंगे कि अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को बख्श दे। क्या दुआ करेंगे? अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, तमाम मोमिनीन को बख्श दे। वो जमीन के ऊपर दुआ करेगा, अल्लाह ताला उसके माँ बाप को जमीन के नीचे बख्श दे। बेशक इसलिए मरने के बाद की तैयारी करो, पता नहीं ये दुनिया कब छोड़ के जाना पड़ जाए। औलाद को इस हाल में छोड़ के जाओ कि जब जनाजा उठे तो वो कुरान पढ़ती नजर आए। पहले आलिम हाफिज बना लो, फिर उसके बाद चाहे इंजीनियर बनाओ, चाहे डॉक्टर बनाओ।